سلامتی ہو، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے یونا نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب ہے، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یونا نبی کی کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں سے، اس کا 30واں باب ہے، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ اور کسی نے یہ حوالہ نکالا ہے، میری بہن نے، بھائی نے، تو اسے ضرور پڑھنے میں رہنمائی کریے۔ یونا کی کتاب 30واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ جی پڑھیے، اگر جس کو بھی ملا وہ پڑھنے میں پاک کلام میں یوں لکھا ہے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس غضب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ آمین۔ جی کوئی اور جس کو یہ حوالہ ملا ہو ضرور پڑھنے میں رہنمائی کریے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، آئیں ہم دعا کریں۔ خدائے قدوس، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں خوبصورت کلام بخشا ہے، تو نے ہمیں فضل بخشا ہے، ہم اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری راہوں کے لیے باعث برکت ہو، ہماری زندگیوں کے لیے کانٹ چھانٹ کے لیے ہو، مسیح یسوع کے نام میں۔ کسی وقت میں ایک بادشاہ تھا، اور یہ بادشاہ جو ہے یہ اس قدر ذہین تھا، خدا نے اسے عقل اور خرد کی روح بخشی تھی۔ ایک وقت آیا کہ اس نے اپنی بادشاہت کا کچھ وقت کے لیے جو پلیٹ فارم تھا، وہ دربار تھا، اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ پر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں اسے ایک ایسا شخص ملا جس نے اسے اپنے گھر پر دعوت دی۔ یہ اس کے گھر پر گیا اور اس کے گھر پر رہنے لگا۔ اچھا، یہ جو شخص ہے یہ اسے کھانا بھی دیتا ہے، اسے پینے کے لیے بھی دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جناب اسے دباتا بھی ہے، اس کی ٹانگیں دباتا ہے، سر دباتا ہوگا، اس کے بازو دباتا ہوگا، کیونکہ یہ ایک کیا ہے، ایک بادشاہ ہے۔ اب اس شخص کو یہ ضرور پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن جب اسے کھانا دیتا، اسے دباتا، اس کے ساتھ گفتگو کرتا، کافی لمبی لمبی، اور یہاں تک کہ سارا دن اس کے ساتھ گفتگو کے ساتھ گزر جاتا۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی مفاد، کوئی بات ایسی کیے بغیر، کوئی ایسی اپنی درخواست جو یہ میرے حضور رکھے، میں تو بھی ہوں بھی سادہ لباس میں، لیکن اسے پتا تو ہے، لیکن یہ مجھ سے کیوں درخواست کیوں نہیں کر رہا؟ تو بادشاہ نے ذہن میں سوچا کہ اس سے پہلے کہ معاملہ آگے بڑھے، وہ اس کے گھر کو چھوڑ کر دوبارہ پھر اپنی بادشاہی محل میں چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص جو ہے وہ بادشاہ کو ڈھونڈتے ہوئے وہ اسی محل کے قریب پہنچ گیا جہاں وہ بادشاہ کا محل تھا۔ وہ بادشاہ کے اس محل کے اندر گیا، اس نے دیکھا کہ جناب بادشاہ اپنے محل پر اپنی کرسی پر تاج پوشی کیے ہوئے جناب لباس پہنے بیٹھا ہے۔ وہ شخص دور سے اس بادشاہ کو دیکھ کر اس کے قریب گیا
बादशाह ने जैसे ही उसे देखा है, उसने कहा कि तमाम वजीर, तमाम इर्द गिर्द के शख्स जो हैं वो दूर हो जाएं। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसे इतनी तरजीह दी जा रही है कि उसने सारे वजीर, सारे लोगों को पीछे करके एक ऐसे इंसान को कॉल की है, एक ऐसे इंसान को बुलाया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये कौन सा शख्स है, इसकी कैसे इज्जत होगी। उसने कहा कि इस शख्स को मेरी कुर्सी पर बादशाही लिबास पहनाकर इसे उस चेयर पर, उस बादशाही कुर्सी पर बैठाया जाए जिस जगह पर मैं बैठा था। बादशाह नीचे उतरा, उसे अपना लिबास किया और वहां पर बैठ गया। उन लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है कि हम भी तो वजीर हैं, हम भी तो लोग हैं, लेकिन आपने ऐसी इज्जत इसे क्यों बख्शी कि आपने अपनी ही कुर्सी पर इसे क्या किया है, बैठा दिया। बादशाह ने कहा, गौर से सुनिएगा, बादशाह ने कहा कि मैं जब यहां इस महल से निकला था तो इस शख्स ने बिना कुछ समझे सोचे और बिना किसी मफाद के मुझे खाना दिया, मुझे सोने को चारपाई दी, मुझे दबाया और मेरे साथ गुफ्तगू की, और खाने पीने के बाद, गपशप करने के बाद, मैं काफी दिन वहां से रहने के बाद मैं सोचकर इस बात पर मैं वहां से इसके घर से वापस लौट आया। पता नहीं कौन सा मफाद है, लेकिन अब मुझे ये समझ आया है कि जब ये ढूंढता हुआ मेरे महल तक पहुंचा है तो ये इस बात के लिए कि इसे कुछ मफाद नहीं, बल्कि ये एक इंसानियत के नाते मुझसे मोहब्बत रखते हुए इस महल तक पहुंचा है कि बादशाह को देखूं वो जिंदा है या मर गया है। और बादशाह ने कहा, मैंने इस मोहब्बत और इसकी लगन देखकर मैंने अपने दिल में ये रहम डाला है कि मैं अपनी कुर्सी छोड़कर इस अजीम इंसान को इस कुर्सी का दर्जा दे दूं। बाज़ औक़ात खुदा हम पर रहम करना चाहता है, लेकिन शायद वो सोच रहा होता है कि कहीं इंसान अपने मफाद के लिए तो मेरे साथ नहीं जुड़ा, और ये शख्स अपने मफाद के लिए उस बादशाह की तमादारी नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक इंसानी के नाते उसके साथ मोहब्बत, प्यार, लगन रखते हुए उसे अपने घर में जगह भी देता है, उसे खाने और पीने के लिए उसे वहां पर वो चीजें मुहैया भी करता है जो उसकी जरूरत की होती है। आमीन। आज सपहर जिस इन्वान पर हम बात करेंगे उस इन्वान का नाम है, शायद खुदा रहम करने का इरादा करे। शायद खुदा रहम करने का इरादा करे। अजीजों, मैंने आपके सामने यूना की किताब उसका 3रा बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत आपके सामने तलावत समाअत करने के लिए फरमाई। यहां इसके पस मंजर पर जब हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूना एक नबी है। यूना खुदा का एक चुना हुआ वो इंसान है, वो शख्स है, वो एक ऐसा नबी है कि जिसे खुदा ने ये हुक्म दिया है कि वो नैनवा के मुल्क में जाकर खुदा के हुक्म की तामील करे और वहां पर यह बताए कि नैनवा शहर जो है वो तबाह होने वाला है। पस मंजर यह है कि ये खुदा की हुक्म की तकफीर करता है और खुदा इस पर भड़कता है और मछली के पेट में से 3 दिन रहना पड़ता है। अब जिस महल के बारे में खुदा इसके सामने ये बात रखता है कि वो मुल्क जो है, वो शहर जो है, वो इसलिए तबाह करना चाहता हूं कि वहां पर लोग बुत प्रस्त हैं और बदकार हैं, बुरे लोग हैं, उनकी आयातें जो है वो अच्छी नहीं है, उनकी हरकतें मेरे नजदीक अच्छी नहीं है, इसलिए मैं उस मुल्क को क्या करना चाहता हूं, तबाह और रेस करना चाहता हूं। उसमें किसी ऐसे गुनाहगार इंसान का निशान नहीं छोड़ना चाहता। अब क्या होता है, ये खुदा का नबी यूना जो है वहां पर पैगाम लेकर जाता है। लोग इसे ऐसी नजरों से देखते हैं
कदर ही नहीं है। मैं अगर मौजूदा दौर के लिहाज से इस बात को लूं तो आज भी जब खुदा का खादिम जो है वो जब कलाम पेश कर रहा होता है और उसकी बातें जो हैं वो ना समझ आने वाली होती हैं तो लोग नजरअंदाज करके तो ऐसे चले जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे यूना नबी को नजरअंदाज किया गया हो। लेकिन 40 दिन का टाइम था कि 40 दिन के अंदर मैं इस मुल्क को बर्बाद कर दूंगा। यूना तालीम देता रहा। पहले वो शर्माता है, पहले वो हिचकिचाता है, और जैसे ही उसकी झिझक खत्म होती है वो बुलंद आवाज के साथ खुदा के नाम को पुकारना शुरू कर देता है और कहता है कि तौबा करो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। वो कहता है कि मुल्क नैनवा तबाह होने वाला है, मुल्क नैनवा जो है वो खाक होने वाला है। इससे पहले कि तुम पर जुल्म हो, इससे पहले कि तुम राख में चले जाओ, तुम तौबा करो ताकि इस 2025 में तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल जाए। और होता क्या है, मैं उस बादशाह को सलूट पेश करता हूं जो नैनवा का है और बुतों की पूजा करने वाला है। जब उसे इस बात का इल्म होता है कि जनाब हमारा मुल्क जो है वो तबाह होने वाला है और शायद खुदा हम पर रहम करने का इरादा करे, वो कौम जो अपने ऊपर खाक डालती है, टाट छोड़ती है, खुदा के आगे रोती है, करलाती है, ये बादशाह अपनी कौम से आगे 2 कदम बढ़ के आगे जाके बैठता है और कहता है कि है खुदा, हो सके तो हम पर रहम फरमा, क्योंकि हम इस लायक नहीं है कि तू हम पर अपना हाथ बढ़ा सके, हम इस लायक नहीं है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर हमें आजाद कर सके। लेकिन खुदा उस बादशाह की हलीमी और इनकसारी को देखते हुए इस कदर उस पर मेहरबान होता है कि 40 दिन गुजरने के बाद ये यूना नबी पहाड़ वाली साइड पर जाके खड़ा होता है कि मैं मुल्क को बर्बाद होते हुए देखूं। लेकिन 40 दिन के बाद बादशाह और उसके शहर के राया के लोग जब खुदा के आगे चुप कर दुआ रोजे में ठहर रहे हैं तो खुदा उनको छुड़ा देता है और यूना खुदा से ये शिकायत करता है कि आखिर तूने इस मुल्क को छोड़ा क्यों है, तूने इस मुल्क को तबाह क्यों नहीं किया। 40 दिन का तूने टाइम दिया, मैं मछली के पेट में मैं 3 दिन रहा, तूने मुझे सजा दी, मैंने तेरा हुक्म तोड़ा, लेकिन क्यों अब इस मुल्क को तबाह करने से क्यों कासिर है। उसने कहा कि जो बूटा तूने लगाया नहीं उसके लिए पछताता क्यों है, जो बूटा तूने लगाया नहीं उसके लिए रोता क्यों है, जो बूटा तूने लगाया नहीं उसके लिए ये कोशिश क्यों करता है कि उस बूटे की जड़ों को काट कर उसे तबाह कर दे। उसने कहा कि अदालत करने वाला मैं खुदा हूं, तू कौन होता है। और 40 दिन के बाद नैनवा शहर की काया पलट गई और खुदा ने नैनवा शहर को फिर से बख्श दिया और वो लोगों ने खुदा के आगे झुककर ये सजदा किया कि हम आपसे नैनवा शहर के रहने वाले लोग जो है हम बुत परस्ती छोड़कर हम खुदा की पूजा करना शुरू कर। नैनवा शहर बदल गया है। खुदा शायद हम पर रहम करने का इरादा करे। खुदा ने नैनवा शहर के मुकद्दर बदल दिए हैं क्योंकि वो खाक हो चुके थे, उन्होंने अपने सर में खाक डाल दी थी, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। 2024 गुजर गया है, 2025 हमारे सामने है। कई बुजुर्ग, कई अजीज चले गए जिनको खुदा ने ये शरफ ना बख्शा कि वो फिर से अपने खुदा के हुजूर आकर नैनवा शहर की तरह तौबा कर सके। लेकिन ये शरफ आज मेरे और आपके पास है। क्यों? क्योंकि ये शरफ इसलिए हमारे पास है क्योंकि खुदा ने हमें फसल बख्श कर हमें कलाम मुकद्दस दिया है। और जबकि ये जिंदा कलाम हमारे पास है, चाहिए था कि हम तो बदल जाते, हम तब्दील हो जाते, लेकिन आज भी हम अपने मुफाद के लिए किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुक बढ़ाते हैं, अपने मुफाद के लिए। यूना का मुफाद ये था कि जबकि मैं इतने दूर से सफर करके आया हूं, जब से मैं इतनी ठोकरें खाकर आया हूं, जबकि मैं इतना दुख सह के आया हूं, तो चाहिए तो ये था कि खुदा ने जिस तरह से मुझे कर्म में से गुजारा है, खुदा नैनवा
मेरी कावश की कोई वैल्यू ही नहीं है। खुदा ने कहा कि ये बूटा मैंने तेरे सामने लगाया है जिसकी छांव में तू बैठा है, वो बूटा कटता है, कीड़ा उसको काटता है और पूरे का पूरा वो बूटा जो है वो थम जाता है, सुकड़ जाता है, उसकी छांव खत्म हो जाती है। याद रखिए, जब आप किसी काम को शुरू करते हैं और बिना मुफाद के आप काम को शुरू करते हैं, किसी से बगैर कोई पैसे का लेन देन के किसी के ऊपर आप रहम करते हैं, तो उससे इस बात का मुफाद मत रखिए कि मैंने इसके साथ अच्छाई की है तो जनाब इसके बदले मुझे अजर मिलेगा। यूना की यही गलती थी कि वो खुदा से इस बात का मुफाद चाहता था। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि रसूल या नबी जो हैं वो जनाब गलत साबित नहीं हो सकते। यहां पर यूना गलती कर बैठा, खुदा के हुजूर कुड़कुड़ा रहा है कि आह तूने नैनवा शहर को छोड़ क्यों दिया है। शायद कि खुदा हम पर रहम करने का इरादा करे, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। खुदा कई बार अपने मकासद के लिए बातों को छुपाए रखता है। कई ऐसी बातें होती हैं जिनका मतलब वो इंसान को नहीं समझाना चाहता। पंजाबी च कहते हैं कि गल दा ओला रवे ते चंगा ही रहिंदा है, अगर खुल जे ते की हुंदा है, काम खराब हो जाता। की हो जाता है, काम खराब हो जाता है। एक ऐसी ही बड़ी खूबसूरत मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। किसी वक्त में एक मियां और बीवी की शादी हुई और वो लड़की जो है वो अपने मेके जाने को है। लड़की खुश नहीं है कि मेरी इस शख्स से शादी हो गई है। किसी ऐसे सुनसान रास्ते से वो गुजर रही है तो वहां पर कुआं है। उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है। किसने कहा? लड़की ने। जैसे ही वो कुएं के पास जाते हैं, लड़की अपने हस्बैंड को धक्का देती है और उसे कुएं में फेंक देती है। उसका मकसद ये था कि मेरा खामन मर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी, मैं इससे आजाद हो जाऊंगा, मैं आखिर इसके साथ ब्याह क्यों कर बैठी, मेरी इसके साथ शादी क्यों हुई, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। हालांकि उसका खामन बड़ा ही हलीम और बड़ा ही अच्छे मिजाज का मालिक था। खुदा की करनी देखिए कि जैसे ही उसने कुएं में उसे फेंका, उसका हाथ किसी जड़ के साथ या किसी ऐसी जगह के साथ अटक गया, वो बच गया। जनाब उस वक्त के लिहाज से अब वो उसकी जो वाइफ है वो अपने घर में चली गई हुई थी, ये वापस उसके पीछे जाता है। उसके मायके वाले पूछते हैं कि तेरा हस्बैंड कहां है? उसने कहा कि पता नहीं, उनको कोई काम है इसलिए वो आए नहीं है। अब उसे तो ये था कि मैं जान छुड़ा आई हूं, वो तो खत्म हो गया हुआ, अब मैं किसी और जगह पर शादी कर लूंगी, मेरा छुटकारा हो गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सादिक और रासबास और वफादार और ईमानदार शख्स को इंसान तो गिरा सकता है लेकिन खुदा उसे गिरने नहीं देता। अब होता क्या है, ये शख्स उसके घर जाता है अपने ससुराल में, और जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचता है तो उसके जनाब सास और ससुर कहते हैं, हाँ जी उस्ताद जी तुसी भी आ गए हो? हाँ जी मैं भी पीछे था, मनु काम सी, मैं इस वजह तो पीछे रह गया। लेकिन उसने अपनी बीवी की बात को खोला नहीं है। वक्त गुजरता है, खाना खाते हैं, वो चले जाते हैं, वक्त गुजरता है, वो शख्स जो है, जो उस औरत का खामंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो जाता है और वो एक चौधरी बन जाता है। क्या बन जाता है जी? चौधरी बन जाता है, वो पंचायती बन जाता है, वो पंचायत के फैसले करने वाला बन जाता है। तुहानू पता है जेड़ा बंदा पंचायती होना उसकी बड़ी चौधर होंदी है, उसकी बड़ी गल सुनी जाती। अब वो बीवी जो है वो बुजुर्गा हो गई है। अब आप ये समझे कि उसने उसके साथ समझौता क्यों किया। उसने कहा कि मैंने इसे मारने की कोशिश की लेकिन ये क्या हो गया है, ये बच गया है। अब मेरे पास और कोई इस तरह का कोई और औजार नहीं या और ऐसी कोई तकनीक नहीं, ये कैसे बच गया। और इसने जबकि मुझे मारा है, मुझे मारने की कोशिश की
वो हमारे दरमियान ज़ाहिर होने नहीं देता, उसमें वो चाहता है कि वो बातें छुपी रहें। अब ये बुजुर्गा हो गई, गल उन्हें खोली नहीं, गल उन्हें खोल के उन्होंने दसी नहीं कि तू मेरे नाल इस तरह कीता, मैं तेरे मापिओ नूं मैं तेरे नूं लावांगा, इल्जाम लावांगा, या अपने मापिओ नूं जाके दसांगा तू हमनूं किहो जी बुढ़ी लियाती है, तू हमनूं किहो जी बीवी देती है। उसने बात को खोला नहीं, उन्हें आख्या ओला है ते ओला ही रहना चाहिए। जनाब एक दिन ऐसा होता है कि उसकी औलाद जवान हो जाती है, गल नूं बड़े गौर नाल सुनना है, औलाद जवान हो गई है, औलाद अपने प्यो दे नाल कदम ना कदम मिला के चलने लग पई है, प्यो दी दाढ़ी सफेद हो गई है, वाल चिट्टे हो गए ने, ते जनाब किते पंचायत दे विच मीठा फैसला करने वास्ते तो होया की है, ओदा प्यो जिहड़ा है ओ जनाब बैठा फैसला करने वास्ते, तो कोई जनाब दो बंदे आए ने साडी इस गल दा पा करो, सानू इहदा फैसला करके दिओ। ओ फैसला इस तरह दा करदा, उन्हें आख्या कि भाई गल इवें ना तुहाडी ते ना उन्हां दी, अब तुसीं समझौता कर लो ते गल नूं जिहड़ा ना खोलो ना, ते गल नूं की रहन दिओ, ठप्पे रहन दिओ। ओदा मुंडा जिहड़ा ना ओले होक तो वेंदा है, उन्हें आख्या प्यो मैनूं सच्ची सच्ची दसी, ओ तू उन्हां दा इंसाफ क्यों नहीं कीता, तू गल नूं खोलिया क्यों नहीं। उन्हें आख्या जे गल खोल देंदा ते काम सारा खराब हो जाना सी, ओ गल दा ओला रवे, गल छुपी रवे ते चंगी रहिंदी है, नहीं ते बड़ा काम की हो जाता है, खराब हो जाता है। उन्हें आख्या नहीं अब्बा जे तू गल खोले तो गल फिर बनती। उन्हें आख्या गल सुन मेरी, तू है जवान, मैं हो गया बुजुर्ग, ते मैं सारियां ठोकरां खा बैठा, ते मैं गल खोलनी नहीं, मैं ना इंसाफ हो गया, ते नाल बेहतर होर की चीज है, गल नूं छुपिया रहन दे। अच्छा जी, ओ जनाब ओ मुंडा जिहड़ा ना ओ बड़ा प्यो दे अगे तरले मिन्नतां करदा है, पर ओदा प्यो को पता की कहंदा, कहंदा जा अपनी मां नूं फिर पुछ लै गल खोल दियां कि रहन दियां, अपनी मां नूं पुछ लै गल खोल दियां कि रहन दियां। ओ जनाब मुंडा नसदा जनाब जांदा अपनी मां दे कोल, मां जनाब जांदियां नूं सब्जी कटदी हुंदी है, घर च सफाइयां भी करदी हुंदी, बुजुर्गां च भी बैठ दो जां अपने मतलब कसो कम करदी होनी, ते जाके आंदा है अम्मा, आंदी हां, उन्हें आख्या बापू पे आंदा है कि गल नूं खोल दियां कि रहन दियां। ओ जनाब इन्नी को गल सुनदी है ते अपने इस तरह ध्याने लगी होंदी, ते जदों मुंडा गल आके आंदा है ना, तो जनाब इन्नी को गल करके ओ बंदा पे दसदा है कि होंदा की है, कोई जनानी जेड़ी है ना वो अपने पुत्र नूं आंदी है कि गल जेड़ी है ना वो खुल ते गई है, तो हुण इहदा कुछ भी नहीं हो सकता। अपने मुंडे नूं भी आंदी जनाब अंदर जांदी है, मुंडा अपने कोई काम घर दे विच ध्याने लग जांदा है, ते ओ जनाब जनानी जाके की कर लेंदी, फांसी ले लेंदी, मर जाती। बुजुर्ग है तो बुजुर्गी की हालत में की लेंदी है, फांसी ले ली। मुंडा जनाब अपने प्यो दे कोल जांदा है, आंदा है तुहां मैनूं आख्या सी कि मां नूं जाके पुछी कि गल खोल दियां कि रहन दियां, ते मैं जदों जाके उन्हां नूं इह पुछिया ना, ते थोड़ी कुछ देर बाद मैं वेख्या ते अम्मा ने अंदर कमरे च फांसी लई है, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ है, मतलब ਕੀ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ मैं ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋ ਪੁੱਛਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ खुदा दे अगे झुक के ये दुआ करनी चाहिए कि साडे उत्ते अगर खुदा ने रहम करने दा इरादा कर लिया ते असी गल नूं खोलण दा इरादा ना करिए, असी अगे वध के किसी नूं पुछण दी कोशिश ना करिए। ओ भाई तू दस, ओ तू मेरे नाल जुड़िया क्यों है, तू मेरे नाल इन्ना वफादार क्यों है, तू मेरे नाल इन्नी
जे वफादार रासबाग ईमानदार वफादार इंसान होगा तो कहेगा कि मेरा खुदा सारी जिंदगी वफादार रहा, मेरा खुदा सारी जिंदगी वफादार रहा, तो मैं क्यों बेवफा हो के ते मैं गल नूं खोलां ते मैं तेरे नाल अपने मुफाद की गल करना। मैं मुफाद नहीं रखदा बल्कि एक इंसानियत का राधा रखदे होया मैं अपनी इंसानियत ते मैं अपनी खुदा की मुहब्बत नूं कायम रखने वास्ते मैं तेरे नाल जुड़िया। गल छुपी रहन दे, गल नूं खोल ना, इहदा कोई मकसद नहीं। कई बार खुदा साडे ते रहम करन दी कोशिश करदा है। हुण इहदे पसे मंदर ते अगर गौर करिए ते ये जिहड़ा मुसन्नफ है इस कॉन्टेक्स्ट दे विच फरमांदा है नैनवा शहर तबाह होने वाला है, खुदा ने नबी भेज दिता, खुदा ने पैगाम किदा भेजा तबाही दा ते कर की रहा रहम कर रहा। खुदा नु कोई इंसान समझ नहीं सकता कि किस वक्त वो अपने लोगों ते मेहरबान होए। साडियां दुआवां, साडियां जरूरतां, साडियां ख्वाहिशां, साडियां मिन्नतां, साडियां इल्तजामां दा खुदा ओ उत्ते बैठा है। असी करब होइए, असी मरदे होइए, सानू बचाने वाला होइए। इसी तरह इस नैनवा कौम दे उत्ते जुल्म होने वाला सी, ये तबाह होने वाले सन, इन्हां दे शहर नूं तूफान जिहड़ा है वो तबाह करने वाला सी। लेकिन देखो एक नबी दे वसीले नाल ही तलीम उन्हां तक पहुंची कि तौबा कर लो ते एक नबी दे वसीले दे नाल ही वो कौम बच गई। खुदा दे फैसले नूं कोई समझ नहीं सकता। असी चाहे जितना मर्जी किसी तरह गलत करने की कोशिश करिए कि यूना ये नहीं सी चाहता कि नैनवा शहर तबाह हो जाए। असी जिन्ना मर्जी अपने इरादे मजबूत करके किसी को बर्बाद करने की कोशिश करिए, लेकिन खुदा जो साडी ईमानदारी, साडी रासबाजी वेंदा है, साडी चंगाई वेंदा है, साडी अच्छाई वेंदा है, तो फिर वो मजबूर हो जाता है कि शायद मैं इस इंसान पर, इस शख्स पर, इस कौम पर रहम करने के लिए मजबूर हो जाऊं। शायद खुदा रहम करने का इरादा करे। 2025 में मैं खुदा का खादिम होते हुए इस पैगाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप किसी मुफाद के लिए किसी शख्स के साथ जुड़े हैं, किसी मुफाद के लिए किसी इंसान की तमादारी कर रहे हैं, अगर वो आपके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ बातें करता है, आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके साथ और ज्यादा आगे किसी वक्त को गुजारना चाहता है, तो उससे इस चीज की बिल्कुल तौर पर उम्मीद मत रखिए कि अगर मैं इसके साथ मोहब्बत और प्यार रखते हुए मैं इसके साथ चल रहा हूं और मैंने इस पर रहम किया है, मैंने इस पर जो है हाथ रखा है, तो ये मत उम्मीद कीजिए कि इसके बदले ये किसी वक्त में मुझे भी काम आएगा, क्योंकि खुदा सब कुछ देखता है। अगर आप किसी के साथ 2 कदम चलेंगे, जिंदा खुदा आपके साथ 4 कदम चलेगा, क्योंकि उसको इंसानों से कोई मुफाद नहीं, उसको इंसान की रासबाजी और उसकी हलीमी से क्या है वास्ता। खुदा कभी भी नहीं चाहता कि इंसान किसी इंसान से उम्मीद रखे। खुदा यही चाहता है कि कोई भी इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से वास्ता रखे। कहते हैं कि अदालत करने वाला तू नहीं बल्कि मैं। अदालत करने वाला तू नहीं, कौन है जी? मैं हूं। और किसी इंसान से तो इस बात की लगन रखते हुए ये मत उम्मीद कर कि जनाब वो मुझ पर रहम करेगा। राबता उसके साथ अगर होगा, रहम वो जिंदा आसमान वो करेगा। हम कठिन हों, हम कड़वे हों, हम चाहे जितने मर्जी खुदा से दूर हों, लेकिन जैसे ही नैनवा शहर की तरह हमारे अंदर की कड़वी जड़ें कट जाएंगी, हम उसको काटने का फैसला कर लेंगे, ऑटोमेटिकली खुदा हम पर रहम करने का इरादा कर लेगा। लेकिन याद रखिए आज इस मौजूदा दौर में बहुत कम है कि हमें कोई ऐसे रासबाज और हलीम और रहम करने वाले शख्स नजर आए कि किसी को देखकर वो ये कहेंगे नहीं ये कमजोर है, ये नाडाल है, इसके साथ चलना चाहिए, कदम ब कदम इसके साथ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत कम नजर आता है। याद रखिए अगर आप नैनवा शहर की तरह ईमानदार हो जाएंगे, खाकसार हो जाएंगे, खुदा के आगे झुककर अपने सर को, अपने घुटनों को खाक कर लेंगे, मैं समझता हूं कि अगर खुदा नैनवा शहर को आबाद कर सकता है तो खुदा आपको भी आबाद कर सकता है। आमीन। खुदा अगर नैनवा शहर को आबाद कर सकता है तो वो फिर आपको भी आबाद कर सकता है, वो आपको भी छुटकारा दे सकता है, वो आपको भी आजाद कर सकता है। और याद रखिए इंसान
इंसान की तसल्ली महज ज़ाहिरी तसल्ली है, लेकिन खुदा की जो तसल्ली है वो अल्लाह ही तसल्ली है। नैनवा शहर ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੜਦੇ ਗਏ ਆ 24 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 25 ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਬਾਇਸੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ बुत प्रस्ती चो खट के तो अपने खुदा दे विच अपने आप ਨੂੰ ਬੇਵਸਤ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋ ਪੱਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਜ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਬਚਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ अगर कलाम के मुताबिक चलते हैं तो मैं वेख के बिल्कुल इस वजह तो खुशी होती है कि वो अज तो बाद 2025 से जो कट गए हैं तो हम दोबारा नैनवा शहर की तरह वो हरकत नहीं करेंगे कि मैं मजबूर हो जाऊँ कि मैं रहम ना करूँ। अगर बदल गए जी टॉपिक के इन्वान किए शायद खुदा हम पर रहम करने का क्या करे इरादा करे। आमीन। एक छोटी जी गल सुना के तेन बंद करांगा। एक बड़ी जबरदस्त एक खुदा दी खादमा अपनी टेस्टमनी सुनाती है। कहती है कि काफी साल पहला ये 2013 की गल है ये जी खादमा ये गल दसदी है कहती है कि साडा घर एक बुत प्रस्तां दा घर सी। असीं सप्पां दी पूजा करदे सी। असीं की करदे सी जी असीं सप्पां दी पूजा करदे सी बजाए इस कि असीं खुदा नूं मनदे। कहती असां सप्पां दी पूजा कर करके असां अपने आप नूं जनाब इस कदर बुत प्रस्त बना लिया सी कि सानूं उत्थों हटा के कोई खुदा दी तरफ नहीं सी लैके जा सकदा। अचानक कहती साडे घर दे विच इक हादसा होया। कहती हादसा ये होया कि साडे एक घर दे विच साडी जिहड़ी एक भैन सी वो कहती है कि उन्होंने बदरूआ ने फड़ लिया। असीं कहती बड़े बुतां को उन्हां पुजारियां को गए पंडितां को गए उन्हें आख्या जनाब इनियां चवानियां चढ़ा दिओ इनियां की चढ़ा दिओ चवानियां चढ़ा दिओ इनियां कुर्बानियां दे दिओ इनियां चादरां चढ़ा दिओ ते तुहाडी बेटी की हो जाएगी आजाद हो जाएगी छुटकारा पा जाएगी। उन्होंने ऐसी कि शायद खुदा रहम करने का इरादा करे। लेकिन याद रखो जेडे लोग है ही बुत परस्त ने खुदा उन्हां दी गल किवें गल नूं बड़े गौर नाल सुनना है ते इस गल दे निचोड़ दे उत्ते तुहाडियां भरपूर तालियां होईयां जे ते हुण ना बजाया गल सुन लिया। जदों वो खात्मा दसदी है कि मैं थक हार के जगह जगह ते असां पानी पी लिया ते जगह जगह दा पानी जेड़ा कड़वा सी असां बड़ियां कुर्बानियां दित्तां बड़े पैसे लछड़े ते आखिरकार कहंदी है कि होया की है। कहंदी साडे घर दे विच भी खाण नूं कुछ नहीं रिहा पीण नूं कुछ नहीं रिहा ते साडे चेहरे इस तरह जिवें असीं जिन्न हुंदे आ। सानूं लोग वेख के डरदे सन अपने घर के दरवाजे ते जदों बहना ते सानूं लोकां ने वेख के आखना ओ इन्हां तो दूर ही रहो इन्हां तो दूर रहो इन्हां दे घर बदरूआं हैगियां इन्हां दे घर दे नेड़ों भी लंघना ना इन्हां दे घर दे विच जाना। जदों खुदा साडे तो नाराज हुंदा है ना ते साडे करीब साडे अपने भी नहीं लगदे। जो खुदा साडे तो नाराज हुंदा साडा को अपना भी साडा पता लैण नहीं आउंदा है। मैं ना किस्मत वाले ने जिन्हां दे अपने अजीजो कारब उन्हां दे रिश्तेदार उन्हां दे नाल ने ते कदी बीमार या कोई चंगी माड़ी हो जाए तो उन्हां दे नाल खलो के कहंदे भाई की होया दसो। लेकिन इन्हां दे अपने ही इन्हां तो की हो गए ने दूर हो गए। वो कहंदी है कि साडे घर वाल कोई नजर नहीं कर रहा। अचानक कहंदी मेरी भैन इस हद तक बीमार हो गई कि हॉस्पिटल लैके गए तो उन्हें आख्या कि सॉरी तुहाडी भैन नहीं बच सकती वो खत्म हो गई। उन्हें आख्या
बीमारी की हालत में मरण तो बाद कहती साडे घर चो फिर भी बदरूआं दा अमला खत्म नहीं होया, उन्हां दा अमला उन्हां दियां बलावां खत्म नहीं होईयां। आखिरकार कहती है कि जदों असी बीमार ते परेशान हाँ ते कहती है वेख्या कि साडे प्यो दे उत्ते भी हमला हो गया। कहती साडे प्यो दी लत्त दे उत्ते एक जख्म बनिया ते कहती साडा प्यो उन्हें खुरक खुरक के ते इस हद तक उन्हें जख्म कर दिता है कि वो डॉक्टर नु चेक कराया तो उन्हें आख्या ये एडा घनौना जख्म बन गया कि तुहाडा प्यो जिहड़ा बस चंद दिनां दा मेहमान है, ये खत्म हो जाएगा, ये जख्म ठीक नहीं हो सकता। कहती मेरी मां चार पाई ते लम्मे पै गई है, ओदा जनाब ओदे उत्ते भी हसर होन लग पिया ते पिछों आंदी है जे घर दे विचों बची सां ते मैं वेनी हां ते मैं आनी हां कि मेरे घराने नूं की हो गया, मेरा घराना किवें आबाद होएगा, मेरा घराना किवें इस बलावां तो छुटकारा पाएगा। ते कहंदी अचानक डॉक्टर नूं चेक कराउण तो बाद एक दिन कहंदी असीं घर दे विच बैठे हां ते अचानक एक औरत आई है, एक औरत कहना भाई एक शख्स आया है तो उन्हें आके ते मेरे प्यो नूं वेख्या, मेरा प्यो दा यार सी, उन्हें आख्या कि यार तेनू की होया है अशरफ, ओ मैनू दस तेरे नाल बनिया की? उन्हें आख्या कि मेरे उत्ते बलावां दा साया हो गया ते मैं बीमार हो गया। उन्हें आख्या गल सुन मेरी, फलां जगह ते इबादत है, फलां चर्च दे विच इबादत है ते कहंदा तू बीमारी दी हालत दे विच है ते मैं ईमान रखना कि तू अगर उस चर्च दे विच आएगा ते तेरियां बलावां भी ठीक हो जाणगियां, तेरियां बीमारियां भी ठीक हो जाणगियां, खुदा तेरे ते रहम करेगा तो तू हाथ चुक के खुदा दे नाम दी गवाही देगा। उन्हें आख्या जे खुदा रहम कर सकता है ते फिर मैं फलाने दिन जिस दिन तू इबादत दा टाइम रखा मैं आवांगा। वो खादमा दसदी है कि मेरा प्यो गया उस शख्स दे कोल, उस पासबान दे कोल, उन्हें आख्या कि आ इस चर्च दे विच आ ते कलाम नूं सुन ते तेरियां बलावां दूर हो जाणगियां। मैं आख्या मैं चर्च गया ते खादम ने मेरे उत्ते दुआ कीती। ओ खादमा दसदी है कि वो जिहड़ा जख्म सी एक हफ्ते दे अंदर अंदर तेल लाण दे नाल खुदा दा मस्सा होया तेल ओदे जिहड़ा जख्म दे उत्ते लाया, ओदे वास्ते दुआ कीती ते कहंदी है मेरा प्यो भी चंगा हो गया ते मेरे प्यो दे उत्ते जिहड़ा बलावां दा साया सी वो भी खत्म हो गया। कहंदी है हुण ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ बलावां ਜਿਹੜੀਆਂ खत्म होईयां ने ते कहंदी है एक और खादम जिहड़ा उन्हें सोचा कि क्यों ना इन्हां नूं होर छुटकारा दिता जाए। कहंदी मेरी मां बीमार हो गई, फिर कहंदी मेरी मां ते भी ये असर हो गया ते कहंदी ये एक ओही शख्स साडे घर आया तो उन्हें सानू एक कलामे मुकद्दस दिता। उन्हें आख्या ए कलामे मुकद्दस जिहड़ा ये कोई आम नहीं, ये कोई किताब जिहड़ी है आम नहीं, इन्हां नूं पढ़ो ते जिन्नी देर तक तुसीं इहनूं पढ़दे रहोगे। उन्हें आख्या मैं ईमान रखना कि जे तेरा प्यो चंगा हो सकदा है, तेरा घर आबाद हो सकदा है ते तेरी मां भी चंगी हो सकदी। उन्हें आख्या ठीक है आज तो बाद मैं कलाम नूं पढ़ना शुरू कर देंगी। वो कहती है कि जिवें ही मैं खुदा दे कलाम नूं पढ़ना शुरू किया कहती है मेरा घर आबाद होना शुरू हो गया, मेरा प्यो ते ऑलरेडी चंगा सी, कहती मेरी मां भी ठीक होना शुरू हो गई। कहती साडे घर च रुपया नहीं सी, साडे घर च रुपया आना शुरू हो गया, मैं कम लग गई ते कहती किथे 2003 दी गल ते 2013 दे विच आके जदों मैं आजाद होई ते मैं खुदा दे कलाम नूं पढ़ के ते मैं अज खुदा दी खादमा बन गई हां। मेरा घर हुण बलावां दा घर नहीं रहा, मेरा घर खुदा दा घर बन गया। शायद खुदा हम पर रहम करने का इरादा करे, शायद खुदा हम पर रहम करने का क्या करे, इरादा करे। उसने रहम करवाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। अखां खुलियां जी कि नहीं? हुण खुलियां जी कि नहीं? खुदा दे कलाम वास्ते जोरदार तालियां बजाओ। आखिर ਇਹਦਾ नतीजा की है साडे वास्ते अज इस नवे साल का जिहड़ा पैगाम है वो साडे वास्ते की है? अगर खुदा उस आम इंसान नूं बादशाह बना सकता है, अगर खुदा उस आम इंसान नूं बादशाह बना सकता है, उस ऐसे शख्स नूं जिन्हें गल लुकोई रखी उन्होंने खुदा एडा वड्डा मुकाम दे सकता है। अगर खुदा एक ऐसी औरत नूं, एक ऐसी लेडी नूं, एक ऐसी औरत नूं
ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2025 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਅਸਾਂ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੈਨਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਕ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ